Now come to our today's topic. Name of today's topic is based on working mechanism of human heart. इसके ऊपर बेस्ड है आज का टॉपिक वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट इन विच यू वांट टू स्टडी कार्डियक साइकिल. जिसमें आज अपनी प्रैक्टिस स्टडी करनी है कार्डियक साइकिल की. ऑलरेडी ये टॉपिक जो है बेस्ड है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के ऊपर. इट इज बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट as well as it is based on conducting system of human heart. Conducting system of human heart. जिसमें अपन ने ऐसे नोड और ए बी नोड की स्टडी किए थे. ये दो टॉपिक अगर ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं तो ऑलरेडी आपको हेल्प होगी. ये कार्डियक साइकिल भी अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है. अगेन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिएगा तो ये टॉपिक जो है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Now come to a topic called cardiac cycle. When you observe this topic called cardiac cycle, when you observe a topic called cardiac cycle, what do you mean by this term? You know very well regarding two terminologies. One is called contraction of human heart, and one you called relaxation of human heart. अपने दो टर्मिनोलॉजी जो है डिस्कस किए हैं. Here in human heart, a phenomena will occur. You call that phenomena as contraction, and one terminology will occur called as relaxation. In which contraction of human heart is called systole, and relaxation of human heart is called diastole. ये दो टर्मिनोलॉजी जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है. One is called systole and one is called relax, or one is called diastole. Systole means contraction of human heart. भले वो contraction ऑरिकल हो रहा हो या वेंट्रिकल हो रहा हो. ऑरिकल भी अगर कॉन्टैक्ट हो रहा हो तो आपको सिस्टोल बोलना पड़ेगा. वेंट्रिकल भी अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है तो आपको सिस्टोल बोलना पड़ेगा. सिमिलरली रिलैक्सेशन ऑरिकल भी होगा, रिलैक्सेशन वेंट्रिकल भी होगा. चाहे वो वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा हो एट ए टाइम यू कॉल डायस्टोल, चाहे वो वेंट्रिकल ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसको आपको बोलना पड़ेगा सिस्टोल. These two terminologies are helpful to study this topic called cardiac cycle, which is kept under mechanism of human heart. Now come to first topic called auricular systole. For studying this topic, you should know the diagram. Human heart का एक हल्का सा स्केच बना लीजिए. स्केच में आपने देखे अपर ऑरिकल जो है ये बल्बस है. लोअर ऑरिकल लोअर वेंट्रिकल जो है डेंड्रॉइड which are bigger in size and slightly. ठीक है. Now level it. इसको लेवल करोगे आप. लेफ्ट ऑरिकल बिलो लेफ्ट ऑरिकल its respective ventricle is there called left ventricle. Now here you have to level it. Right auricle below right auricle its respective ventricle is there called right ventricle. In between auricle and ventricle you level it. Interauricular septum. In between auricle in between two ventricle you call it interventricular septum. ठीक है. Now when you observe right auricle there is an opening from upper side through which blood comes, and that blood comes here with the help of superior vena cava, and that blood get poured in right auricle. Again one more opening is there from lower side which brings blood from lower side of chest, and that opening is called inferior vena cava. इसको अपन लेबल किए थे inferior vena cava, इसको अपन लेबल किए superior vena cava, इसको लेबल किए inferior vena cava. Here one opening is there and it is guarded by a valve. ठीक है. inferior vena cava जो ओपन हो रहा है राइट ऑरिकल में, यहाँ पर एक valve है. We call that valve as eustachian valve. इस valve को क्या नाम दिया गया है? We call that valve as eustachian valve. Similarly, when you observe particularly on right auricle, one more opening is there which collects blood from wall of heart. जो कहां से blood collect कर रहा है? हार्ट के wall से blood collect कर रहा है. And you call that opening as coronary sinus. और उस opening को क्या नाम दिए थे? Coronary sinus. On the surface of coronary sinus, again valve is there. यहाँ पर भी valve है. And you call that valve as Tibacean valve.
और उस वॉल को बोला गया है सेबेशियन वॉल। बट these walls are absent on superior vena cava, कि जो वॉल में absent है superior vena cava में कोई वॉल नहीं है, डायरेक्ट ओपनिंग है। Now in between right auricle and right ventricle again there is aperture. That aperture is guarded by three flaps. वो aperture कैसे गार्ड अप किया हुआ है? three flaps से गार्ड अप किया हुआ है। You call this aperture as tricuspid valve। इस aperture को क्या नाम दिया गया था? Tricuspid valve। Label it. It is called as tricuspid valve। और you may called auriculoventricular valve। और क्या बोला जा सकता है? auriculoventricular valve। Now from right ventricle blood goes in lungs with the help of a T-shape opening। एक T-shape का ओपनिंग है जो ब्लड जो है पंप करवाएगा आउटसाइड द हार्ट। This big opening, T-shape opening is called as pulmonary artery। इस T-shape की ओपनिंग को मैंने बोले थे pulmonary artery। This T-shape opening is called as pulmonary artery। Here also one valve is there। इस pulmonary artery की जो ओपनिंग गई है जो कहां से अराइज हुई है? राइट वेंट्रिकल से अराइज हुई है। Here also one valve is there and we call that valve as semilunar valve। और उस valve को क्या नाम दिया गया है? semilunar valve। Similarly when you observe the left side, यहां से जो ब्लड पंप हुआ कौन सा ब्लड गया था? deoxygenated blood गया था and that deoxygenated blood now enters in both the lungs। When you observe left auricle, here four openings are there। यहाँ पर कितनी ओपनिंग है? चार ओपनिंग है and all these four openings are directly connected to lungs। और ये चारों ओपनिंग जो है किससे कनेक्टेड है? लंग से कनेक्टेड है। so that oxygenated blood will enter। जिससे कौन सी ब्लड आएगा? oxygenated blood will enter here। that oxygenated blood now get entered into its respective ventricle with the help of one aperture and that aperture is guarded by two flaps। that's why this aperture is called as bicuspid valve। इसलिए aperture को क्या बोला जाएगा? bicuspid valve। or you may call it auriculoventricular valve। mitral valve, one more name is given called mitral valve, so that the blood now get entered into respective left ventricle। जैसे blood कहां चले गया? respective left ventricle में चले गया। उसी प्रकार यहां से जो ब्लड आया था राइट ऑरिकल से जो ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर गया ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ। ठीक है, अब यहां से जो ब्लड सप्लाई हुआ इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी and with the help of a big arc and call that big arc or notch as systemic aorta। big जो arc डेवलप हो रहा है उस big arc को notch को बोला गया है systemic aorta which supplies blood to different parts of our body। ये अपन ऐसा सब डिस्कस कर चुके। it has got three openings at the top and we call it systemic aorta। इसको अपन लेबल किए थे systemic aorta which passes blood to different parts of our body and here also a valve is there। once it opens once it arises from left ventricle a systemic aorta arises from left ventricle, here also valve is there and again we call that valve as semilunar valve। और उस valve को भी फिर से क्या नाम दिया गया? semilunar valve। इस प्रकार इंटरनल स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस किए। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने को पढ़ना क्या है? यू हैव टू स्टडी वन टॉपिक इन इंटरनल स्ट्रक्चर, हाउ इट ऑकर। Here one phenomena will occur in cardiac cycle। cardiac cycle में सबसे पहले एक phenomena हो रही है and you call that phenomena as auricular systole। auricular systole, one phenomena will occur here, you call that phenomena as auricular systole। this is first phenomena observed here। auricular systole is that phenomena in which सिस्टोल में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन। एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें ऑरिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा मींस बंद होगा। रिलैक्स होना मींस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना। इसका मतलब हर चेंबर जो हार्ट का है चाहे वो राइट ऑरिकल हो, लेफ्ट ऑरिकल हो, लेफ्ट वेंट्रिकल हो या राइट वेंट्रिकल हो, ऑल दे कांट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एट द सेम टाइम। सबके सब ऑरिकल सबके सब वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते। दे रिक्वायर टाइम। उनको क्या लगता है? समय लगता है। और उसी समय को स्टडी करने के लिए अपने को सबसे पहले स्टडी करना पड़ रहा है एक टॉपिक जिसका नाम है ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल इज दैट फिनोमेना व्हेन ऑरिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द ऑरिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही दोनों ऑरिकल जो है क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे?
जब इसके अंदर में ब्लड नहीं रहेगा, इसके अंदर का ब्लड पूरा ऊज आउट हो गया है, पूरा वेंट्रिकल में चले गया है, तब ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, विच रिक्वायर ओनली 0.1 सेकेंड टू कंप्लीट। जिसको कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा? ओनली 0.1 सेकेंड इज रिक्वायर्ड। इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 0.1 सेकेंड लगेगा। अब यहां जब ब्लड आएगा ऑरिकल में, वो ब्लड आएगा जब सुपीरियर वेना केवा ओपन होगा, जब इंफीरियर वेना केवा से यूस्टेशियन वॉल्व ओपन होगा, और कोरोनरी साइनस का जो थिबेशियन वॉल्व है वो जब ओपन होगा, एट दैट टाइम ब्लड गेट फिल्ड हियर। उस समय ब्लड यहां पर क्या होगा? आके फिलअप होगा। लेकिन फिलअप होने की जवाबदारी कौन करेगा? नोडल टिश्यू करेगा, कार्डियक मसल करेगा, स्पेशलाइज्ड मसल यहां पर रोल अडॉप्ट करता है, एंड यू कॉल दैट स्पेशलाइज्ड मसल एज साइनो ऑरिकुलर नोड। और उस स्पेशलाइज्ड मसल को अपने नाम क्या दिए थे? साइनो ऑरिकुलर नोड। ऐसे नोड जो कहां मौजूद था? सुपीरियर वेना केवा की सरफेस पे टुवर्ड्स राइट साइड वन नोड इज देयर, एंड यू कॉल दैट नोड एज साइनो ऑरिकुलर नोड। ये साइनो ऑरिकुलर नोड अपने इंपल्स प्रोवाइड करेगा, मैसेज कॉन्वे करेगा दोनों ऑरिकल को, जिससे बोथ द ऑरिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट and phenomena will occur, and you call that phenomena as auricular systole, which required only 0.1 second to complete. इसको सिर्फ 0.1 सेकंड लगेगा जिससे कंप्लीट होगा। लेकिन जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑरिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस समय ऑरिकल का ब्लड जो है नेचुरली कहां जाएगा? अपने अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, वहां का ब्लड जो है कहां जाएगा? अपने अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में जाएगा। मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आके जमा हो जाएगा। ये पूरा डीऑक्सीडेटेड ब्लड आके जमा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किए हैं शुरुआत में कि ऑरिकल जो है दे आर रिसीविंग चेंबर एंड वेंट्रिकल जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। ठीक है, ऑरिकल्स को अपन ने हमेशा बोले रिसीविंग चेंबर, और वेंट्रिकल को हमेशा अपन ने बोले डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर जब बोल चुके हैं तो यू नो वेरी वेल अवर हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। ये भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है इट इज ए पंपिंग ऑर्गन, इट्स ए पंपिंग, so that blood is pumped to different parts of our body। इसके थ्रू ब्लड जो है बराबर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में अपना पंप होगा। इसका मतलब ऑरिकल जब सिस्टोल हुआ तो इट विल रिक्वायर ओनली 0.1 सेकंड टू कंप्लीट। ठीक है, और वो फिनोमिना कौन अडॉप्ट करवा रहा है? साइनो ऑरिकुलर नोड के थ्रू फिनोमिना अडॉप्ट हुई। साइनो ऑरिकुलर नोड ने मैसेज कॉन्वे किया, इंपल्स प्रोवाइड किया, सो दैट बोथ द ऑरिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वंस ए कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना विल ऑकर, नाउ द ब्लड एंटर्स इन ऑरिकल। जब ब्लड जो है इसके अंदर क्या होगा? एंटर होना चालू होगा, और ब्लड जब एंटर होना चालू हो रहा है, यू कॉल दैट टर्म एज ऑरिकुलर डायस्टोल। उस समय अपन टर्म को क्या बोलोगे? ऑरिकुलर डायस्टोल, विच रिक्वायर्ड ओनली 0.7 सेकंड टू कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा? ओनली 0.7 सेकंड टू कंप्लीट। दैट टर्म इज कॉल्ड ऑरिकुलर डायस्टोल। ऑरिकुलर डायस्टोल इज ऐसे फिनोमिना। डायस्टोल ने क्या बोला गया? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में ऑरिकल में ब्लड आ गया, फिलअप हो गया, लोड हो गया ऑरिकल में। अब जैसे ऑरिकल में ब्लड लोड हो गया, नाउ इट एंटर्स इनटू इट्स रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल वॉल्व। यू कॉल्ड वन वॉल्व एज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड यू कॉल्ड वन वॉल्व एज बाइकस्पिड वॉल्व। नाउ सेकंड फिनोमिना विल ऑकर इन ह्यूमन हार्ट। अब हार्ट में सेकंड फिनोमिना चालू हुई। यू कॉल्ड दैट सेकंड फिनोमिना एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहां पर ऑरिकुलर सिस्टोल पढ़े थे मैंने, अब आपको पढ़ना पड़ेगा वेंट्रिकुलर systole। A second phenomena will occur called as ventricular systole। systole यानी कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब जब ब्लड यहां पर आ जाएगा उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ब्लड यहां पर कब आएगा? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे। जब ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन होंगे, एट दैट टाइम ब्लड एंटर्स हियर। उस समय ब्लड जो यहां पर एंटर होगा। इसका मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल रिक्वायर टोटल 0.3 सेकंड टू कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है? ओनली 0.3 सेकंड टू कंप्लीट। ओनली 0.3 सेकंड इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द वेंट्रिकल, सो दैट यू कॉल दैट टर्म एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उस समय अपन टर्म को बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ सेकंड टर्मिनोलॉजी विल ऑकर। ब्लड यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड निकल गया, लेकिन फिर से ब्लड आपके फिलअप होगा, एंटर होगा अपने अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल से। तो ब्लड फिलअप करने के जो समय है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर। At that time you call that term as ventricular diastole। उस समय अपने को कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड इट रिक्वायर्ड ओनली 0.5 सेकंड टू कंप्लीट। और इसको कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा? ओनली 0.5 सेकंड टू कंप्लीट। उस 0.5 सेकंड में वेंट्रिकल के अंदर में ब्लड जो है पूरा का पूरा जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड? इट रिक्वायर्ड ओनली 0.5 सेकंड टू कंप्लीट।
एट दैट टाइम वंस द वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो वॉल्व था जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोले थे, इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोले थे, दे क्लोज, ये सब वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. नाउ व्हाई देयर इज अ नीड सो दैट the AV node A, so that there is auriculoventricular aperture called tricuspid and auriculoventricular aperture, second auriculoventricular aperture called as mitral valve or bicuspid, they close. क्यों हो रहा है बंद? बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि वेंट्रिकल की जवाबदारी है कि वो ब्लड को ऑरिकल को ना दे, वेंट्रिकल की जवाबदारी है कि वो ब्लड को आगे एक्सटेंड करे, आगे सप्लाई करे, और वेंट्रिकल से ब्लड जो कहां जाएगा नेचुरली पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और एओर्टा के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई होगा. दैट्स व्हाई हियर द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व गेट क्लोज. दिस बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व वंस दे गेट क्लोज दे क्रिएट ए साउंड, और जैसे ही बंद हो रहे हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल्व वंस इट स्टार्ट्स क्लोजिंग इट क्रिएट ए साउंड. उस समय क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है. At that time it create a sound and you call that sound as first heart sound. और उस साउंड को क्या बोला गया है, first heart sound. And that first heart sound is called as love. और उस first heart sound को क्या नाम दिया गया है, love. And this sound is heard by using some special instruments and you call that instrument as stethoscope. उस समय अपन एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा, stethoscope. Stethoscope helps you to hear this sound, and that sound is heard in form of some total beats, and total number of beats in human being per minute is 68 to 72 times. एक मिनट में अपना हार्ट जो बीट देता है वो 68 to 72 टाइम्स पर मिनट अपना हार्ट बीट देता है. और बीट की स्टडी करने के लिए अपने को एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर. क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, स्फिग्नोमैनोमीटर. सबसे पहला साउंड यहाँ पर आ गया अपना फर्स्ट हार्ट साउंड, एंड कॉल्ड दैट फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड लव. नाउ व्हेन ऑल चेंबर्स ऑफ हार्ट आर इन डायस्टोल फॉर्म, अब सभी के सभी चेंबर्स, चाहे दोनों ऑरिकल हो या दोनों वेंट्रिकल हो, सब के सब अगर हार्ट के चेंबर जो है वो डायस्टोलिक फॉर्म में आ गए, डायस्टोलिक फॉर्म में आ गए मींस रिलैक्स फॉर्म में आ गए. एट दैट टाइम यू वांट टू यूज वन मोर बायोलॉजिकल वर्ड, उस समय आपको एक और बायोलॉजिकल वर्ड यूज करना पड़ेगा, एंड यू कॉल दैट बायोलॉजिकल वर्ड एज जॉइंट डायस्टोल. उस समय आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल. व्हेन ऑल द चेंबर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट वांट टू कॉन्ट्रैक्ट, सबके सब चेंबर्स ह्यूमन हार्ट के अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट दैट टाइम यू वांट टू यूज वन वर्ड कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल, और यू मे कॉल इट कंप्लीट डायस्टोल. एक और वर्ड यहां यूज कर सकते हो आप, कॉल्ड एज कंप्लीट डायस्टोल. कंप्लीट डायस्टोल. So what is that complete diastole? Complete diastole is that phenomena when from ventricle, ये जो वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका था, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब ये ब्लड जो है सेल्यूलर वॉल्व के थ्रू, दोनों में देखिए सेल्यूलर वॉल्व है, वो सेल्यूलर वॉल्व जो है नाउ इट स्टार्ट्स क्लोजिंग. सेल्यूलर वॉल्व जो है क्या होगा, यहां पर क्लोज होगा. क्लोज क्यों होगा, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. जैसे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो गया था जिसके थ्रू ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं आ पाया, उसी प्रकार सेल्यूलर वॉल्व भी जब क्लोज होगा, डायस्टोलिक जॉइंट डायस्टोल फिनोमेना में सेल्यूलर वॉल्व दे गेट क्लोज, एंड वंस दे गेट क्लोज दे आल्सो क्रिएट ए साउंड. उस समय सेल्यूलर वॉल्व भी क्लोज होने के बाद एक साउंड क्रिएट करेगा, एंड यू कॉल दैट साउंड एज डब. उस समय उस साउंड को क्या नाम दिया जाएगा, डब, और यू मे प्रोनाउंस इट डब. दोनों अल्फाबेट यहां पर चलते हैं, DUBB और DUP. ठीक है, दिस इज सेकंड हार्ट साउंड. इसको क्या नाम दिया जाएगा, दिस इज सेकंड हार्ट साउंड, एंड दिस सेकंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज डब. और उस सेकंड हार्ट साउंड को क्या बोला गया है, डब. तो वेंट्रिकल में मैसेज किसने दिया, साइनो-ऑरिकुलर नोड ने तो ऑरिकल में मैसेज दिया, वेंट्रिकल के ऊपर मैसेज देता था. यहां पर एक आपको मालूम है एक नोड था यहां पर, एंड यू कॉल दैट नोड एज ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको अपन ने पेस सेटर बोले थे. साइनो-ऑरिकुलर नोड को अपन ने बोले थे पेस मेकर, और ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में था, कोरोनरी साइनस के पास में था, उसको अपन ने नाम दिए थे AV नोड. ठीक है, इसका मतलब साइनो-ऑरिकुलर नोड ने मैसेज दिया ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड को, इंपल्स प्रोवाइड किया,
इंपल्स जनरेट किया, जिसको इंटरनोडल पाथवे बोले थे अपन ने। अब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से मैसेज जाएगा स्मॉल फाइबर में, जिसको बोला गया था बंडल ऑफ हीस। अब बंडल ऑफ हीस बाद में डिस्टिंग्विश हुआ दो पार्ट में, एक को बोला गया था लेफ्ट बंडल ऑफ हीस, एक को बोला गया राइट बंडल ऑफ हीस। याद आ रहा है? वहां से फिर एक ट्री बना था, फाइबर का एक ट्री बना था, जिसको पुर्किंजे फाइबर बोले थे। इस प्रकार पूरा मैसेज जो है कॉन्वेइंग सिस्टम जो है वो वेंट्रिकल को सबसे लास्ट में पहुंचता है, जिसमें साइनोऑरिकुलर नोड ने भी हेल्प किया, एवी नोड ने भी हेल्प किया, बंडल ऑफ हीस ने भी हेल्प किया और पुर्किंजे फाइबर ने भी हेल्प किया। सो दैट ब्लड नाउ द मैसेज गोज टू ऑल द वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल वांट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू वेंट्रिकल अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस प्रकार कंप्लीट ड्यूरेशन की बात की जाए, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल, पूरे कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा, सो दैट व्हेन यू ऑब्जर्व इट यू विल गेट इट विल रिक्वायर्ड ओनली 0.8 सेकंड टू कंप्लीट, 0.8 seconds is required to complete one cardiac cycle. Duration of one cardiac cycle require only 0.8 seconds to complete. Now, on the basis of this detail, you will observe that two terminologies are studied here. यहाँ पर दो terminologies जो है आप स्टडी कर सकते हैं। एक terminology स्टडी कर सकते हो stroke volume. One terminology is studied here in form of stroke volume, which is represented by SV, stroke volume. Stroke volume is that volume in which total amount of blood which is present in auricle, which is present in ventricle, and from ventricle it ooze out. How much blood goes from ventricle? That volume is totally 70 ml of blood. वो ब्लड जो कितना रिलीज करता है, ये 70 ml ब्लड रिलीज करता है। ठीक है? Now come to second terminology. You call that second terminology as cardiac output. Cardiac output, which is represented by CO. इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? CO से। Cardiac output is that phenomena which require total number of stroke volume added with total number of beats, which you call heartbeats. Total heartbeats per minute में कितनी डेवलप हुई है, और इनमें कॉल्ड हार्ट रेट, हार्ट बीट बोल सकते हो आप इसको, हार्ट रेट भी बोल सकते हो। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया था 70 ml और हार्ट बीट आ रहा है टोटल 72 टाइम्स पर मिनट, सो दैट द वैल्यू यू गेट हियर इज 5040 ml पर मिनट, मींस ऑन एन एवरेज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड गोज आउट पर मिनट। ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड जो है हर मिनट में अपना हार्ट जो है यूज आउट करता है, सप्लाई करता है, पंप करता है। ये भी वैल्यू जो है यू वांट टू लर्न इट। स्ट्रोक वॉल्यूम लर्न करके रखिए कि कितने क्वांटिटी का ब्लड जो है ह्यूमन हार्ट का चेंबर जो है वो पंप कर रहा है। देन टोटल क्वांटिटी ध्यान में रखिए कि कार्डियक आउटपुट जो है वो किस प्रकार स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के थ्रू 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट जो है वो यूज आउट कर रहा है। ये भी आप ध्यान में रखिए, सो दैट सम एमसीक्यूज आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। इसके थ्रू ये टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यूज जो है पूछे जाते हैं। और कार्डियक साइकिल में इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार रीड कर लेना ध्यान से, और कंडक्टिंग सिस्टम नोडल टिश्यू को एक बार रीड कर लेना ध्यान से, तो ये टॉपिक जो है बराबर आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें ये देखा गया है कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व कैसे ओपन और क्लोज हुए, और सिंगुलर वॉल्व और ओपन और क्लोज कैसे हुए, और उसी वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग से एक साउंड क्रिएट होता है जिसको फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड बोले थे। फर्स्ट हार्ट साउंड को अपन ने लब बोले थे और सेकंड हार्ट साउंड को अपन ने डब बोले थे। एंड यू गॉट ए कंटिन्यू हियरिंग विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप से बराबर कंटिन्यू हियरिंग आपको मिलेगी। एंड यू कॉल दैट हियरिंग एज लब डब लब डब लब डब। Once a lub dub sound is created, means the heart work properly. डॉक्टर क्या समझेगा कि आपका हार्ट जो है वो वर्क प्रॉपरली हो रहा है। If some abnormal sound will come, अगर समझो बाय चांस कोई abnormal sound आता है, ठीक है, वो abnormal sound कब आएगा? जब bicuspid tricuspid valve abnormally open और close हो रहा है, singular valve abnormally open और close हो रहा है, at that time a special sound is hearing. A special sound is heard by doctor through stethoscope, and you call that sound as murmur. उस समय उस साउंड को क्या बोला जाएगा? murmur. It indicates there is disorder in heart. ये इंडिकेट करता है कि हार्ट में कोई ना कोई डिसऑर्डर आया है। At that time treatment
मस्ट बी डन, उस समय हार्ट का ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर तुरंत करेगा। यू मे कॉल्ड हैशिंग साउंड, उस समय आप उस साउंड को क्या बोलोगे, हैशिंग साउंड। तुरंत स्टेथोस्कोप से आइडिया आ जाती है। हियरिंग करने से डॉक्टर को अंदाजा आ जाता है कि पेशेंट जो है वो कितना अच्छा है, हार्ट उसका कितना वर्क कर रहा है। सो दैट ऑल दिस डिटेल्स हेल्प यू टू डायग्नोज योर हार्ट। थैंक यू।